Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Welcome you all to English language class. Today our class is class number 7. This is also a very interesting class in context of spoken. If you are a beginner and you want to learn English and you want to be fluent in English language, and after taking this class, after watching this class, you will be able to talk about your daily routine activities. This is very basic class for talking about your daily routine activities. How we will talk about our daily routine activities? What are the main items we have to discuss while discussing about our daily routine activities? In this class, we will discuss it in 3 different stages. That are the 3 different stages of a day. When we are discussing about our daily routine activities, in what tense we will discuss our daily routine activities, and how we will discuss how we can discuss our daily routine activities, which type of words, which type of phrases we can use for describing our daily routine activities. So this is very important class for beginners and for all those who want to be fluent or who want to talk into English language. Number 1 is the first part of the day is starting the day. Starting the day. ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम 24/7 24 घंटे की जो हमारी रूटीन है, अब उसके बारे में अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से. वो आपसे कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी बंदा. फॉर एग्जाम्पल, समवन पुट ए क्वेश्चन ऑन यू, ही कैन आस्क व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, और ही कैन से व्हाट डिड यू डू टुडे, or what are you going to do today. So you can answer these 2 questions in different way about your daily routine activities. Okay, the first part of the day is starting the day. How we will start our day? This is the very basic point. This is the starting of a day. When we start our day and someone asks from us that what is your daily routine activities, what did you do in the morning, or he can say what are you going to do tomorrow. You can answer to these questions is number 1, first of all, we wake up or get up, and when we get up, we wake up, we use 2 phrases. Early in the morning, we can say I wake up early in the morning, I get up early in the morning. And when you are not narrating about your daily routine activities, you can say I got up, I woke up, in past indefinite tense. We will discuss it later when we use present indefinite tense and when we will use past indefinite tense. We will discuss it later. जब आप अपना डे स्टार्ट करते हैं, सुबह आपकी जो डेली फर्स्ट एक्टिविटी होती है, आपका दिन जहां से शुरू होता है वो आपके जागने से शुरू होता है. जब आप उठते हैं तो उठने के लिए, जागने के लिए, बेदार होने के लिए इंग्लिश में 2 फ्रेजेस, 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. या तो आप कहते हैं वेक अप, या आप इस्तेमाल करते हैं गेट अप. तो 2 वर्ड में से कोई भी फ्रेज आप इस्तेमाल करेंगे वो सूटेबल फ्रेज है, वो एक अच्छी फ्रेज है, मौजू फ्रेज है. आप उसके साथ जो है अपनी डिस्कशन का आगाज कर सकते हैं. जब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, तो आप उसको कह सकते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, एंड ब्रश माई टीथ. एंड ब्रश माई टीथ बिकॉज आफ्टर गेटिंग अप यू हैव टू ब्रश योर टीथ. दिस इज a moral duty, this is a moral obligation, this is responsibility, or this is our daily routine. After getting up, after waking up, we must brush our teeth. है या आपने खुद तैयार करते हैं, रोज तैयार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो आप लिखेंगे आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, आई मेक माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद आप नाश्ता जो है वो खाते हैं या नाश्ता जो है वो करते हैं, तो उसके लिए कौन सी वर्डिंग इस्तेमाल होनी चाहिए? उसके लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट और आई ईट माई ब्रेकफास्ट.
यहां पे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आई टेक माई ब्रेकफास्ट। आई टेक माई ब्रेकफास्ट जो है ये इनकरेक्ट है स्पोकन के अंदर, राइटिंग के अंदर। नेटिव स्पीकर्स जो हैं, जिनकी ये जुबान है, जिनकी ये लैंग्वेज है, वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट और आई टेक माई लंच और आई टेक माई डिनर। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है। जब आप ये कह रहे होते हैं कि आई टेक माई ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ब्रेक ले रहे हैं, आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं किसी से और जाके आप जो है वो नाश्ता करेंगे। आप कहते हैं आई टेक माई लंच, इसका मतलब ये है कि आप लंच के लिए ब्रेक लिया, आपने वक्फा लिया। आप कहते हैं आई टेक माई डिनर, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी से डिनर के लिए क्या कर रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं और फिर जाके आप डिनर करेंगे। तो जब खाना खाना होता है आपने, तो खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए या लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए you can only use these two words, have and eat. This is more formal word and this is informal word. You can use, because you are expressing your daily routine activities, you can use this word, I ate my breakfast, I ate my breakfast. You can say I had my breakfast, I have my breakfast. I will tell you later that which tense is used while describing your daily routine activities. Now coming to next, after breakfast you should take a shower or you must take a shower. It is up to you. We can use two words for taking shower, that is take a shower or have a shower, and take a bath and have a bath. What is difference between taking shower and taking bath? These two are different words. They are not they are not same. They are though they are synonyms, but they are not same. ये दोनों वर्ड एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, अगरचे ये एक जैसे हैं। सिनोनिम्स है, नहाने को कहते हैं शावर और बाथ। लेकिन अगर आप when you are standing under the shower and water is showering on you, you are taking a shower. And when you are sitting in a tub or when you are taking bath in a location, in a place, so you are not taking shower, you are actually taking the bath. So remember this point. जब आप शावर के नीचे खड़े हैं और आप जो है वो शावर ले रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं कह सकते आई एम टेकिंग बाथ, आई टेक बाथ, बिकॉज आप शावर के नीचे खड़े हैं और पानी ऊपर से आपके ऊपर शावर कर रहा है, आप पानी आ रहा है, तो आप शावर बोलेंगे उस वर्ड को, आप बाथ नहीं बोलेंगे। इसी तरह से आप जो है वो टब में बैठे हैं या आप बैठे हुए अपने ऊपर पानी डाल के नहा रहे हैं, आप बाल्टी में पानी लिए आप नहा रहे हैं, तो आप शावर नहीं ले रहे, आप क्या कर रहे हैं, बाथ ले रहे हैं। You are taking bath. So remember this. You can say I take a shower, I take a bath, I have a shower, I have a bath. So here is another word. Here is another word you can use for shower. Hop in the shower. Hop in the shower. This is a term used by natives. Native speakers जो हैं, आप अगर किसी नेटिव को सुन रहे हैं, कोई ऐसा बंदा जो यूरोपियन कंट्रीज का है, जो अमेरिका से है, जो बरतानिया से है, बाकी या किसी यूरोपियन कंट्री से है, तो आप जब उसको सुनेंगे तो वो अक्सर ये कहेगा आई एम हॉप इन द शावर, आई हॉप इन द शावर। वो कहेगा आई हॉप इन द शावर। हॉपन का मतलब होता है लिटिल जंप, अ लिटिल बिट जंप, यानी मैं जल्दी से आया और मैंने फौरन जो है वो शावर खोला और मैं उसके नीचे खड़ा हो गया, तो उसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हॉप इन द शावर, हॉप इन द शावर। सो अगर कोई इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करे हॉप इन द शावर, तो आपने यही समझना है कि वो ये कह रहा है कि आई टेक द बाथ और आई टेक द शावर। तो नेटिव स्पीकर जो है इस वर्ड को भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इस वर्ड का भी ख्याल रखना है। Next one is do my hair. Do my hair. This is very important because we non-native speakers use this word. I comb my hair. I am combing my hair. This is not a correct word for when you are straighten your hair, when you are curl your hair. You can use this word as do my hair. Do my hair mean you are curling your hair or you are
स्ट्रेटन योर हेयर, यू आर गोइंग टू स्ट्रेटन योर हेयर, यानी जब आप बालों में कंघी कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारे यहाँ एक टर्म हमें सिखाई गई है जी, कॉम्बिंग करना, कंघी करने को कहते हैं। हालांकि नेटिव के यहाँ ये कॉम्बिंग का कंसेप्ट नहीं है। जब भी वो कंघी करने को के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं आई डू माई हेयर। आई डू माई हेयर का मतलब है अगर वो कर्ल करना चाहते हैं यानी स्पाइरल बनाना चाहते हैं अपने बालों में या उन्हें सीधा करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर वो उन्हें जो है ना वो स्पाइरल करना चाहते हैं अपने बालों को, हेयर को, तो वो कर्ल का वर्ड इस्तेमाल करने। तो आपने भी आइंदा बालों में कंघी करने के लिए आपने कॉम्बिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर, या आप कह सकते हैं आई कर्ल माई हेयर, आई कर्ल माई हेयर, आई स्ट्रेटन माई हेयर, या आप ऐसे कहेंगे आई डू माई हेयर, आई डू माई हेयर। और उसके बाद नेक्स्ट है ड्रिंक कॉफी, ड्रिंक टी। और इसमें ऐसे भी होता है कि बाज लोग इस्तेमाल करते हैं टेक टी और टेक कॉफी, इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस तरह है कि नेटिव्स जो हैं, नेटिव्स वो चाय पीने के लिए या कॉफी पीने के लिए वो ड्रिंक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपने टेक इस्तेमाल कर लिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नेटिव इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने कर लिया तो इस तरह से कोई इशू नहीं है, आई टेक टी और आई ड्रिंक टी और कॉफी। लेकिन अगर आप चाय बनाई है आपने, एक और बात याद रखें, अगर आपने चाय बनाई है तो आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे टू स्टीप अ टी बैग इन कप, यानी आप चाय बना रहे हैं, टी बैग वाली चाय पी रहे हैं, आप देगची वाली चाय नहीं पी रहे। अमूमन जो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं वो देगची वाली चाय नहीं पीते, सब कुछ जो है वहां से वाटर कूलर से हॉट पानी लिया, उसमें जो है वो 2 स्पून जो है वो आपने मिल्क के डाले, शुगर डाली और फिर एक टी बैग लिया और उसको चाय में हिलाया। उस टी बैग के हिलाने को कहते हैं टू स्टीप अ टी बैग इन कप। आई स्टीप अ टी बैग इन कप, इट्स मीन दैट I make tea, I prepare tea, and अगर आप कॉफी बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं तो कॉफी बनाने के लिए आपने ब्रू का वर्ड इस्तेमाल करना है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है? ब्रू। आई ब्रू कॉफी। और आपने कॉफी के लिए स्टीप का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, प्रिपेयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, कुक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। देखो कॉफी भी पकाई जाती है ना, आग पे पकाई जाती है, और जब कॉफी पकाई जाती है जिस तरह खाना भी पकाया जाता है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि जी मैं कॉफी बना रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे? आई प्रिपेयर कॉफी, आई एम प्रिपेयरिंग कॉफी, और आई एम कुकिंग कॉफी नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे आई एम ब्रूइंग कॉफी। ब्रू क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? ब्रू, कॉफी के लिए ब्रू। और जो आप चाय बना रहे हैं, कोई टी बैग है आपके पास, आपने उसमें से चाय तैयार की, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे टू स्टीप अ टी बैग इन कप। सो द नेक्स्ट वन इज आफ्टर ऑल these activities you put on your clothes, and this is the second last work you have done before going to your work. You put on your clothes. You can say I put clothes on, or you can say I put on clothes and go to school and go for work. Okay, remember the preposition. Which preposition is used when you are going to school and when you are going for a work? If you are going to school, you must use the preposition to with go. I am going to school. And if you are going to work, you can use I am going for work. So this is the grammatical difference between these two. When you are going to school or when you are going for a work, you can use these two prepositions. This is grammatical point of view. This is the last task you do before you going to your school or before you going to for your work. So this is the last task which you do at the start of the day. So this is your starting of the day. If someone asks these two questions from you, now you are able to answer these two questions because there are a lot of points to answer to these questions. Number one is, if someone asks, I am asking you please answer this question. Please you stand up and answer this question.
what did you do in the morning? Okay, answer using these points. Answer to this question using these points. What did you do in the morning? I get up early in the morning. I brush my teeth. I make my breakfast and I eat my breakfast. After that, use a transitional word which we have studied in the previous class. And after having breakfast, after taking breakfast, after eating breakfast, I take a shower, I take a bath, I do my hair, drink coffee, or you can say to steep a tea bag in a cup, or brew coffee, and put on clothes and go to university. Okay, this is all about what you can say. If someone asks a question from you, what did you do in the morning? Zainab, you please stand up and answer this question. What are you going to do tomorrow? Okay, answer to this question. This is a very simple question. And about this question, how you will answer? Okay, you please stand up and you respond to this question. What are you going to do tomorrow? Yes, what are you going to do tomorrow? Using these points, you can answer to this question. Tomorrow I woke up at 7 o'clock and then I brush my teeth, and after that I make Good. prepare my breakfast and Okay. eat. Then I have to take shower. After that I will do my hair. Okay. Drink my coffee. Okay. After that I will put my clothes and go to office. Okay, very good answer. So now during the day, after our breakfast, when we go to school or when we go for work, what will be our routine in the day? During the day, how we will discuss our routine during the day. Number one point is go for a lunch, and after taking the classes, after attending the classes, or after when we are at work, in the mid of the day, we take a lunch. So for this, we can use these words: go for a lunch, or you can say grab a lunch. What is basic difference between go for a lunch and grab a lunch? Grab means when you are in hurry and you want to do something in hurry, you have not enough time and you have only 10 minutes for your lunch break, and you go fast to your canteen and you take your lunch and eat it immediately and come back to your work. So you can say I grab a lunch. ग्रैब का मतलब ये होता है जो काम आपने जल्दी करना होता है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने वो फौरन वो काम करना है, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ड ग्रैब अ लंच. आई ग्रैब अ लंच और आई गो फॉर अ लंच. एंड इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप कहेंगे टेक अ लंच, क्या कहेंगे? तो टेक ए लंच का मतलब ये होगा, मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ ब्रेकफास्ट के वक्त, टेक ए लंच का मतलब होगा कि आपने खाने के लिए ब्रेक ली है. सो खाना खाने के लिए आप दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ग्रेब अ लंच, ईट अ लंच, ठीक है, गेट अ लंच, कुछ कर सकते हैं, लेकिन टेक अ लंच आप जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. टेक अ लंच का मतलब क्या होगा? आप खाने के लिए टाइम लिया, आपको वक्फा मिला, आपको टाइम पीरियड थोड़ा सा मिला जिसमें आप खाना खाएंगे. खाना खाने को टेक अ लंच नहीं कहते. इसके लिए ये फ्रेज जो है इनकरेक्ट है. खाना खाने के लिए आप टेक अ लंच कभी भी नहीं बोलेंगे. और नेक्स्ट वन इज हैव मीटिंग्स, हैव क्लासेस. हैव क्लास, इसका मतलब ये होता है कि दिन में आपने किसी के साथ मुलाकात करनी है, बिजनेस के हवाले से आपने डिस्कशन करनी है, बातचीत करनी है, या आपने कोई क्लास वगैरह लेनी है, तो आप कहते हैं I have meetings with foreigners, I have meetings with my client, I have meeting with other persons, and you can say I have classes whole day for English language, or you can say whatever your class is. The next one is go to class or attend the class, have a class.
these two words are not used by natives though they are correct. ये दो फ्रेज जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन नेटिव इस्तेमाल नहीं करते इनको. नेटिव हमेशा कहते हैं गो टू क्लास, और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे अटेंड द क्लास, तो ये एक स्केड्यूल दिया जाता है आपको कि आपको क्लास, ये स्केड्यूल, इसके मुताबिक आप क्लास अटेंड करें. तो वहां आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर अटेंडिंग द क्लास, दिस इज योर स्केड्यूल. तो अटेंडिंग का वर्ड वहां इस्तेमाल किया जाता है. और या हैव ए क्लास वहां इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और क्लास का टाइम हो गया, आप कहते हैं आई हैव अ क्लास. आप रिमाइंडर देने के लिए किसी को अपने स्केड्यूल के बारे में किसी को रिमाइंडर देने के लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं आई हैव अ क्लास. लेकिन जब आप क्लास लेने के लिए जा रहे हैं तो यू आर टेकिंग ए क्लास और यू आर गोइंग टू क्लास. यू कैन से टेक अ क्लास और गो टू क्लास. लेकिन आप ये कहेंगे अटेंड द क्लास, हैव अ क्लास, आप क्लास लेने जा रहे हैं तो आप इस तरह से ये दो वर्ड नहीं बोलेंगे. अलबत्ता आपकी क्लास का टाइम हो गया, आप दोस्तों के साथ खड़े, आप उन्हें कहेंगे आई हैव अ क्लास. इसका मतलब ये है कि आप क्लास के लिए जा रहे हैं, अभी आपने गए नहीं है, आप उनको अपना स्केड्यूल बता रहे. आई हैव अ मीटिंग आप कह सकते हैं, आप किसी को आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, मैंने उधर जाना है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज सी फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, कॉलीग. दिन के वक्त आप अपने दोस्तों को मिलते हैं, अपने साथ जो काम करने वालों से मिलते हैं, आप जो है वो अपने कॉलीग से मिलते हैं जो आपके साथ पढ़ाते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं. तो ये भी आपकी डेली रूटीन में एक्टिविटी है. और नेक्स्ट वन इज अगर आप स्टूडेंट हैं, आप दिन के वक्त लाइब्रेरी जाते हैं, वहां स्टडी करते हैं, या क्लास में स्टडी करते हैं, या ग्राउंड में बैठे होते हैं वहां पे आप कुछ स्टडी करते हैं, या ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, या आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, तो आपकी ये भी डेली रूटीन की एक्टिविटी है दिन के वक्त. टू रन एरेंड्स, ये बात आपके लिए नई है. व्हाट इज मीन्स बाय टू रन एरेंड्स? टू रन एरेंड्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे वो काम जो आपके स्केड्यूल का हिस्सा नहीं होते, जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आपको करने पड़ते हैं. मिसाल के तौर पर आप स्कूल में आए या आप खड़े थे, किसी ने आपको कह दिया यार मुझे बाहर से एक कोल्ड ड्रिंक ला के दे दो. ये आपका स्केड्यूल नहीं था, लेकिन आपने उसको ला के दे दिया, तो ये आपका क्या है? टू रन एरेंड्स. इन्हें क्या बोलते हैं? टू रन एरेंड्स. आप यहाँ बाहर खड़े थे, आपको प्रिंसिपल ने कहा मुझे एक मार्कर लेके आगे दे. आपका काम नहीं है, ये आपके टास्क में जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपने ये काम कर दिया. तो डेली के ऐसे तमाम काम जो आपके टास्क में इंक्लूड नहीं है, जो आपके स्केड्यूल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप कर लेते हैं, आप जो है वो अदब में कर लेते हैं, रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, किसी दूसरे की जो है बात सुन के कर लेते हैं, किसी भी हवाले से आप जो काम करते हैं, तो उनको कहा जाता है टू रन एरेंड्स. जो जितने छोटे मोटे काम करते हैं वो भी आप दिन में वो काम करते हैं. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डिड यू डू टुडे, तो दिस विल बी योर रिस्पांस कि दिन को आपने क्या किया. तो ये आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, आज आप दिन के वक्त क्या करने जा रहे हैं, आज जो है वो आप क्या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका रिस्पांस जो है वो इस तरह से होना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज द यस यू कैन. यस, मोहम्मद जुबैर इज Mr. Person, can we use the word do like I do my class yesterday? I do my class yesterday. No, you cannot use the word do. Do is not specifically used for taking class. You can use I took my class yesterday. Okay, you can say I took my class yesterday. Not you can use this word do. We can use do with another thing, that is do my homework, I did my homework. You can say I do my homework, I did my homework, but you cannot say Mr. Zubair thank you very much for responding. And the next part of the day is evening to night. First we clear what is difference between evening and night. The time from round about from 6 p.m. to 9 p.m. is known as evening. This time is included in evening, and after 9 to till the dawn 3 a.m. you can say this is night, late night or night. Okay, now what are your activities from evening to night? You can say at evening, in the evening I grab or meat for dinner, I get drink, I grab drink, I meet for dinner, drink for dinner. You can say whatever you are doing, you can answer it as
And the next one is you are a student and you are at home in evening, and in evening you can say I go for a walk, or you can say I go to gym, or you can say I go to playground, or you can say I do my homework, or in the past tense you can say I did my homework for the previous day, for yesterday. And cook dinner or eat or have dinner, this is another way if you have to prepare your dinner by yourself. अगर आपने खाना खुद ही बनाना है रात का भी, तो फिर आप कहते हैं I cook my dinner and then I eat my dinner. और eating के लिए आप eat के लिए word इस्तेमाल कर सकते हैं have my dinner, I cook my dinner, I have my dinner. And do laundry or did laundry, you can say laundry, you can say that you can two words you can use that by hand or in washing machine. If you do laundry by hand, you can say I do laundry by hand, I do laundry by in washing machine. So you cannot say I do laundry or I wash my clothes. You cannot say this. For washing clothes, specifically the word is used do laundry, or for the past time you can use did laundry. ये बात याद रखें, स्पेसिफिकली आप जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं जी वॉशिंग क्लॉथेज, तो वॉशिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेटिव जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं डू लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब ये होता है कि कपड़े धोना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डू लॉन्ड्री बाय हैंड, अगर हाथों से धोए आप कहते हैं आई डू लॉन्ड्री बाय हैंड, और अगर आपने मशीन के अंदर जो है वो कपड़े धोए आप कहते हैं आई डू लॉन्ड्री इन वॉशिंग मशीन। द नेक्स्ट वन इज वॉश डिशेज आर टू डू डिशेज, यानी बर्तन जो खाना आपने खाया है ऐसे ही नहीं फेंकना, उसको धोना भी होता है। तो जब आप वो खाने के बर्तन जो है वो साफ करते हैं या उन्हें धोते हैं तो आप क्या इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉश डिशेज। ये जो वॉश का वर्ड है ये डिशेज के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वॉश डिशेज, और आप कह सकते हैं टू डू डिशेज, और ये नहीं कह सकते टू डू वॉश डिशेज, ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये कहेंगे या वॉश डिशेज या आप कहेंगे टू डू डिशेज। Okay, the last one is when you are watching a movie at home, you can say I watch a movie. And if you are planning to go into a theater, and when you are planning to go into a concert, when you are planning to go outside your home, you can say I see a movie in theater, I see a live concert, whatever you want to do outside, from outside your home. So you can say see for outside your home and watch when you are at your home. So this is all about how to talk about your daily routine activities. ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है ये सारे का सारा आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। Do remember one point that while you are narrating your daily routine activities, and yesterday we have discussed that we must use present indefinite tense for daily routine actions, in present indefinite tense. And what we are planning to do something, when we are planning to do something in the future, and we are going to do it, so we can use this as going to plus V1. For example, we want to take class at 6 p.m. so you can say I'm going to take class at 6 p.m. So here going to is showing that you are going to do something in the future. When you are going to do something in the future, you must use this structure going to plus V1. Going to plus V1. Always, there is always a first form after going to. After going to. I am going to attend class at 6 p.m. I am going to play cricket. I am going to play cricket in the ground. I am going to a walk, I am going to enjoy a music. So you can say going to plus V1. So remember a point, grammatical point of view, एक ग्रामर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सुन लें। जितने भी कंप्लीटेड एक्शंस होंगे उन कंप्लीटेड एक्शंस को हमेशा दो टेंसेस में लिखा जाता है। वो दो टेंसेस कौन से हैं? एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट
और दूसरा एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है तमाम कंप्लीटेड एक्शन को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है और कौन से कंप्लीटेड एक्शन को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है? तो बहुत आसान है, ये मैंने यहां पॉइंट लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये हम इसको देखते हैं। When time lapses words are used in a sentence, जब किसी सेंटेंस के अंदर टाइम लैप्सेस वर्ड आ जाए, यानी ऐसे अल्फाज आ जाएं जो वक्त गुजरने का आपको बता रहे हो, जैसा कि आज, सुबह, कल, 2 बजे, अभी, थोड़ी देर पहले, तो इस तरह के वर्ड उर्दू में आ जाएं या इंग्लिश में आ जाए, जैसे टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड आ जाएं जिस सेंटेंस में, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये टाइम लैप्स है, टाइम को शो कर रहा है, यानी टाइम लैप्स हो गया है, तो आप उस कंप्लीटेड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और अगर ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें टाइम लैप्सेस वर्ड नहीं है, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आप कहते हैं मेरा दोस्त लाहौर गया, आप कहते हैं मेरा दोस्त लाहौर चला गया, आप कहते हैं मेरा दोस्त लाहौर चला गया है, तो आप इसमें देखें किसी जगह आपको टाइम लैप्सेस वर्ड नजर आ रहा है? नहीं। तो आप कहेंगे माई फ्रेंड हैज गॉन टू लाहौर, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा दोस्त कल लाहौर चला गया है, क्या लेके आ गए? कल, टाइम लैप्सेस वर्ड आ गया ना, तो आप इसको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बोलेंगे ना लिखेंगे। आप कहेंगे माई फ्रेंड वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लगा के, माई फ्रेंड वेंट टू लाहौर यस्टरडे, क्योंकि टाइम लैप्सेस वर्ड आ गया। तो स्पोकन में भी इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप किसी फिनिश्ड एक्शन के बारे में, किसी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें टाइम लैप्सेस वर्ड आ गया, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। और अगर आप किसी फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें टाइम लैप्सेस वर्ड नहीं है, उस फिनिश्ड एक्शन में टाइम लैप्सेस वर्ड नहीं है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट class, and after watching this class you will be able to talk about your daily routine activities, and always speak in present indefinite tense when you are talking about your daily routine activities, because this is a general fact about present indefinite tense. All daily routine activities must write in present indefinite tense. Have you any question related to this topic? If you have any question, you can ask in comments, or you can ask live to me. Any question regarding this topic? You must practice these 4 questions. Question 1 and 2 starting the day, question 1 and 2 during the day, question 1 and 2 evening to night. So must practice these questions. These questions are very much necessary for practice section. If you wanna to become fluent in English, if you wanna learn English, and if you wanna learn how to talk about your daily routine activity, must practice these questions. These questions are very much important for practicing about daily routine activities. इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आपकी समझ में ना आई हो, तो आप इसको स्नैपशॉट ले लें इसका एक, और उसके बाद आगे थोड़े सा ग्रामर के 1-2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ किए भी हैं कुछ पॉइंट्स, मजीद कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त आप जो ये स्नैपशॉट इसकी ले लें जल्दी से, और जो लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको, ताकि आसानी हो जाए। ये स्नैपशॉट ले लें इसकी सब। सर ये सारा हमें याद करना है सर? जी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करना है। ये पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डिड यू डू टुडे,
तो आपने आज क्या किया है, तो आप ये सारी बात आपको ये समझाने के लिए बताया कि आप ये वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वर्ड लिखवाए हैं ताकि आप ये वर्ड बोल सकते हैं, उसको अपनी रूटीन समझाने के लिए, डेली एक्टिविटी समझाने के लिए आप ये वर्डिंग जो है वो बोल सकते हैं। Okay. Rabi. Okay, 10 minutes. After 10 minutes, you are allowed to go. Okay, after 10 minutes. So we will discuss here a very little point about grammar as we discuss grammar point during the lecture. Now we are going to discuss something more interesting about different use of different tenses. So in the yesterday class we discussed about the difference between present indefinite and present continuous tense. Now in this grammar class we will discuss the difference between present indefinite and future indefinite. What is the difference between present indefinite and future indefinite? So इस लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। जितने भी फ्यूचर के फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन प्लान हैं, एक्शन प्लान्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं। और जितने भी अनफिक्स्ड फ्यूचर एक्शन प्लान हैं, अनफिक्स्ड फ्यूचर एक्शन प्लान्स हैं, वो सारे के सारे जो है आप फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनेट की प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मजीद हम जो है अगर छोटा कर दें, सब्जेक्ट प्लस V1, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एस डाल दिया मैंने, तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर यहां पे डू आ जाए, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर डज आ जाए, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, मैंने पी डाल दिए, तो डू लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्यूचर की स्ट्रक्चर्स क्या हैं। फ्यूचर की दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अब मॉडल में कौन से मॉडल हैं जी? वेल और शेल, ये दो मॉडल इस्तेमाल होते हैं इसमें, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरी स्ट्रक्चर इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर है, हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर नहीं है। वो क्या है? ये फ्यूचर की स्ट्रक्चर है। वो कौन से काम है? फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में करने होते हैं, अभी हमने किए नहीं होते। तो ये भी एक फ्यूचर की ये भी स्ट्रक्चर है कि वो काम जो अभी हम करने जा रहे हैं अभी हमने किया नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं अभी बाजार जो है वो खरीदारी के लिए जा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम बाजार, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं मैं अभी जो है वो खेलने के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले इन द ग्राउंड। अभी आपने यानी वो काम किया नहीं है, वो काम अभी आपने शुरू किया है और वो काम जाके फ्यूचर में किसी पॉइंट पे एंड होगा, तो वो भी आपका फ्यूचर इंडेफिनेट कहलाएगा।
तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फिक्स फ्यूचर एक्शन प्लान उस दिन भी हमने पढ़े हैं, अनफिक्स। जितने भी फिक्स फ्यूचर एक्शन प्लान है यानी वो सारे काम जो हमने करने फ्यूचर में, लेकिन स्केड्यूल बना दिया उनका, क्या कर दिया है, मिसाल के तौर पर स्केड्यूल ये बन गया है कि गाड़ी 10 बजे रवाना होगी। गाड़ी कितने बजे रवाना होगी? आप ट्रेनों के जितने भी स्केड्यूल हैं, जितने भी फिक्स्ड एक्शन हैं जो फ्यूचर के हैं, जिन्हें स्केड्यूल बना दिया है, उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। अगर आप उसको वेल और शेल के साथ लिखेंगे, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, राइटिंग में भी और स्पोकन में भी। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ये ग्रामर का जो बेसिक पॉइंट आज हमने पढ़ा है वो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। Yes, you can say this is a preposition topic. We'll discuss it where we use by, where we use at, where we can use till, where we can use until. So this is a grammatical point of view. In that grammar portion, we will discuss about the use of at, on, in, by for the time. So these are preposition of time. We will use these preposition for place as well, but we will discuss it in the grammar portion of preposition. And when we are going to discuss preposition, we must discuss it the use of at, on, by for time. Okay, this is all about for today grammar class and spoken class. So if you have any question, you can ask question about this relevant point or any other point. No, sir. Any question do you have in your mind? No, sir. Okay, there must be some question. There should be some question, because you are sitting in a class more than an hour and you didn't ask a single question. This is very much interesting. It means that you are getting something very interesting, or you are getting bored in the class. And we'll leave you. I leave you at 6 o'clock, because I don't want to say I leave you, because this is not a fixed action. This is unfixed action. It depends upon me whether I will leave you or not. Okay? Okay.